So fourth chapter, ratio and proportion with Shabazz sir. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं अभी. We will directly start with the practice set 4.1. So what is the first question guys? Let me know. पहला क्वेश्चन है क्या? नहीं, हम लोग इसमें तीन करने वाले, 3 पार्ट. जस्ट अ मोमेंट, मेरे को यहाँ पर ना just a moment. As I'm sharing the screen, I'm not getting the innovate part. Just a moment. Okay, students. So what is the first question? What is the first question? As you are not seeing, आप देख नहीं पा रहे हो, खाली इतना याद रख लो, आपको डिवाइड करना है. दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? टेक्स्ट बुक आपके हाथ में है ना? टेक्स्ट बुक भी साथ में रखना है कभी भी. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? यू हैव टू डू द डिवाइड पार्ट. ओके, आपको इसको छोटे फॉर्म में लाना है, राइट? सो व्हाट विल बी द आंसर? 72, 60. So you have to write in this way, guys. What is the question? You have to reduce first number to the second number. This is the question, right? As you can see the textbook. Reduce first number to the second number. So you will write in this way. 72 upon 60. You have to write in this way. Now see here carefully. What is the number which is divisible by 72 as well as 60? ऐसा किसका टेबल है जिससे 72 भी जाता है और 60 भी जाता है? Yes, you are aware of. 20 तक का टेबल याद रहना चाहिए आपको. 72 डिवाइड होता है 12 से और 60 भी डिवाइड होता है 12 से. So I can write down 72 divided by 12 as well as 60 divided by 12. Is it okay for you guys? Yes or no? Is it okay for you guys? Okay. Now see here carefully. 72 divided by 12. That means what is the answer? 12 6 are 72. 12 6 are. So we can write here 6 upon 12. How many is 60? 12 कितना 60 होता है? Yes, 6 upon 5. So this is a reduced form. इसको हम लोग लिखेंगे 6:5. Is it so simple, students? कितना सिंपल है देखो. 6:5 आ गया. चलो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो. सिंपल है ना? आर्यन, मैंने स्क्रीन इज नॉट विजिबल गाइस टू ऑल ऑफ यू. जस्ट अ मोमेंट. Sorry guys, just a moment. हाँ चलो, 72 था upon 60, right? So 72, how I can write? 72 divided by what? 72 divided by 12 upon 60 divided by 12. So 72 divided by 12 is how much? It is 6. And 60 divided by 12, it is how much? It is 5. So 6 divided by 5, you can write 6:5. This is your first answer. Yes or no? बहुत सिंपल है ना? अगर ये हार्ड लग रहा है तो फिर सोच लो मैथमेटिक्स कहाँ पर है आपका, राइट? ये तो दिख रहा है, बट मैं भी दिख रहा हूँ क्या आपको वीडियो में? यस और नो? हाँ, मैं तो दिख रहा ही हूँ. चलो आगे बढ़ते. नेक्स्ट वन इज 38 upon 57. Now you will tell what is the factor, what is the number which is divisible. I am getting the answer. Very good guys. Yes, I am getting answer 19. 19 से डिवाइड होगा ये. 38 divided by 19 upon 57 divided by 19. So 19, how many is a 38? 19, how many is a 38? Yes, 19 2s are 38. 19 3s are 15/7. Yes or no? So the final answer is 2:3. Is it so simple, students? बहुत सिंपल है क्या नहीं बबुआ? सब जन बोलो. Yes, it is very simple. It is very simple. चलो आगे बढ़ते हैं. नहीं, I know कल रक्षाबंधन था. नहीं, enjoyed or not yesterday? हाँ, कई लोग तो मस्त कई कई जगह पे घूमने गए थे, राइट? ध्यान से बताओ क्या फैक्टर होगा आपका? डायरेक्टली 26. वेरी सिंपल. सो वी कैन राइट हियर 52 divided by 26 upon 78 divided by 26. So 26, how many are? 26 2s are, and here 26 3s are. So we can write here 2:3. Kindly take the screenshot of this part guys, fast. Guys, खाली आपको फैक्टर्स देखना है और कुछ भी नहीं. जस्ट यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स. तो 7 में जाएगा 7 2s are 14. 7 2s are 14, and here you will get 3, say 35.
7 5 35 upon 7 5 35. So 7 1 is 7, 7 1 is 7. So final answer is this 25 upon 11. So you will directly write 25 is to 11. 25 is to 11. Yes, directly you can divide with 28 also, हाँ guys. 28 से भी direct जाता है और डायरेक्टली आप ऐसा भी कट कर सकते हो. टेक द स्क्रीनशॉट गाइस फास्ट. जल्दी स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी. Next part. Now you can see here directly. Third one I am doing. Focus here guys, all of you. See here. It is given here 5 liter. यहाँ पर दिया है 5 लीटर. It is given 2500 ml. We are know that कि यूनिट्स कैसे होता है. पहले वाला है लीटर, दूसरे वाला है मिलीलीटर. तो कभी भी क्या करने का, बड़े को छोटा करने का. You have to convert bigger unit to smaller unit. Now we know that 1 liter equals to how many milliliter? It is 1000 milliliter. 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1000 milliliter. तो you are given 5 liter. So how much I can get? 5000. Yes or no students? 1 लीटर में 1000 लीटर 1000 मिलीलीटर होता है. तो 5 लीटर में कितना होगा बच्चे लोग? 5000 हो जाएगा. So you can write 5000 अपॉन में ये क्या है? 2500. डायरेक्टली लिख दो. आ जाओ यहाँ पर. अब मेरे को डायरेक्टली मालूम पड़ गया कि 2500 का डबल ही क्या होता है? 5000. सो आई कैन डायरेक्टली डिवाइड विद 2500. देखो यहाँ पर 5000 को मैं डायरेक्टली डिवाइड किया 2500 से अपॉन. तो 2500 को भी किससे डिवाइड किया? 2500 से. आई हैव टू से टेक द कॉमन फैक्टर गाइस. मेरे को कॉमन फैक्टर देखने का है. मेरे को कॉमन फैक्टर देखना. आप 25 से भी कर सकते हो. ओके 25 से भी कर सकते हो. मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. 5000 डिवाइड बाय 2500 डायरेक्टली आएगा 2. बिकॉज 2500 इंटू 2 करोगे ना तो 5000 आता है आपको. 2500 इंटू 5000 करोगे ना, डिवाइड करोगे तो 2 आएगा आपको. यहाँ पर भी करो, ये तो सेम है. 2500 डिवाइड बाय 2500 कट हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सो फाइनल आंसर इज 2:1. एनी डाउट स्टूडेंट्स? आप डायरेक्टली डिवाइड 0 भी कट कर सकते हो. सर डायरेक्टली देखो डिवाइड 0 भी कट कर सकते हो. फिर 50/25 हो गया. ये तो 25 में जाता है डायरेक्टली. ये किस में जाता है? 25 में जाता है डायरेक्टली. सो काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम गाइस फास्ट. जल्दी इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट ताकि हम बढ़े आगे. अभी क्या नेक्स्ट वन डन यहाँ तक. चलो. यस आई नो गाइस इट इज वेरी सिंपल. 3.8 किलोग्राम एंड 1900 ग्राम. नाउ टेल मी फर्स्ट 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज 1000 ग्राम. अगर आप जाते हो नहीं किराने के दुकान पे, अगर आप बोलते हो 1 किलो शक्कर दो, तो वहां पर आप देखते हो डिजिटल मीटर होता है ना, उसमें 1000 ग्राम लिखा रहता है. देखे आपने? 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000 होता है. सब देखने का कभी भी. ठीक है. 1 किलो कितना होगा? 1000. तो 3.8 मतलब कितना होगा? 3.8 इंटू 1000. यस और नो? 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. सो 3.8 मतलब कितना हो जाएगा? 3.8 हाँ पॉइंट है तो एक बार पहले पॉइंट सरकेगा, देन 2 0. तो इट विल बी योर 3800. हाउ मेनी ग्राम? 3800 ग्राम. तो इन प्लेस ऑफ 3.8 किलोग्राम आई कैन राइट डाउन हाउ मच? सिंपल है गाइस. 3.8 का मतलब क्या होगा? 3 kg एंड 800 ग्राम. 3 kg का मतलब क्या होता है? 3 kg का मतलब क्या होता है? 3000 और ये प्लस 800. तो कितना होगा बच्चे लोग? 3000 प्लस 800 कितना होगा? 3800. 3800. So in place of this, I can write down 3800 upon this is 1900. Simple. 0 0 कट गया. 0 0 कट गया. What you got? 38 upon 19 you got. So what is the common factor? Yes, 19 is the common factor. You will divide by 19 both sides. Both numerator and denominator get divided by 19. So 38 divided by 19 is how much? It is 2 upon 19 divided by 19 is how much? It is 1. So final answer is 2:1. Final answer is 2:1. Final answer is 2:1. Yes or no? Kindly take the screenshot. Kindly take the screenshot, please. If done, let me know.
So that we can move ahead. And I'm repeating, guys. We have given here 75 is to 100, 75 is to 100 means 75 upon 100. अब मैंने ये देखा किस फैक्टर में जाता है दोनों. It is the multiple of 25. So 75 divided by 25 upon 100 divided by 25. Now divide it. If you will divide 75 divided by 25, you will get 3. 25 into 4 अगर आप करोगे तब 100 मिलेगा. So it is 4. So you will get 3:4. This is the final answer. Take the screenshot or we will do next sum. Next sum क्या है? 44 upon 100. 44 upon 100. हम डायरेक्टली उसको 2 से करेंगे. पहले देखो यहाँ पर 2 2s are 4, 2 2s are 4 upon 2 5s are 10, 2 0s are 0. Yes or no? 2 is common. So 2 2s are 4, 2 2s are 4 upon 2 50s are 100. अब वापस 2 में जाएगा. 2 1s are 2, 2 1s are 2. Yes or no? Now divide it. 2 how many is are 50? Yes. 2 25s are 2 25. So the final answer is 11 divided by 25. This is your final answer, guys. Take the screenshot. This is your final answer. See here. It is given. Sorry. What is given? See, 6.25%. So percentage how we can write? Upon 100. 6.25 we can write upon 100. परसेंटेज ऐसे लिखते हैं ना आप. 74% समझो आपको. तो मतलब क्या 74 अपन 100 है ना. वो 100 में से आपको 74% मिला है. तो वैसे ही 6.25% का मतलब क्या हुआ? 6.25 अपॉन 100. सो व्हाट यू विल डू? ध्यान से देखो. पॉइंट के बाद कितना नंबर है? पॉइंट के बाद कितना नंबर है? पॉइंट के बाद 2 नंबर है. तो हम 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. सी हियर into 100 into 100. This is the easiest step what I am talking about right now. समझे? तो पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 है तो पॉइंट 2 बार सरकेगा. ये इधर आएगा 1 2. तो ये बन जाएगा आपका 625. ये बन जाएगा आपका 625. यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक समझ में आ गया आपको? अपॉन कितना 0 1 0 2 0 3 0 4 0 4 0 डालो. अब देखो यहाँ पर ये किस में जाएगा? ये किस में जाएगा? ये जाएगा 25 में. यस और नो? तो डिवाइड करो. डिवाइड बाय 25 and you also divide by 25. If you will divide 625 divided by 25, you will get 25 because 25 into 25 is 625. अगर आप 625 को 25 से डिवाइड करोगे तो you will get what? 25. तो you will get 25 अपॉन इसको डिवाइड करो. कितना आता? 400 आता है. करके देखो आप. देखो 25 डिवाइड बाय 1 2 3 4. 25 4 जा 100 हो गया और ये 2 0. तो 25 डिवाइड बाय 10,000 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 400. अभी ध्यान से देखो यार. 5 से कटेगा. 5 से कटेगा ना. कैसे कटेगा बताओ मेरे को? 5 5 जा 25 एंड हियर 5 8 जा 40 5 0 जा 5 8 जा 40 5 0 जा. अब आगे हो. 5 1 जा एंड हाउ मच? 5 1 जा एंड 80 किस में जाएगा? Yes, 5 16 is up. So final answer is 1:16. Final answer is how much? It is 1:16. I hope guys बहुत simple part है. ध्यान दो. 3% can build a small house in 8 days. अगर 3% लोग काम कर रहे हैं कितने दिन में घर बनेगा? 8 दिन. अगर 3% काम कर रहे हैं कितने दिन में घर बनेगा? 8 दिन. Similarly वो लोग बोले टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days. अगर मुझे 6 दिन में बनाना है तो कितने % लगेंगे? वो लोग वो बोल रहे हैं. सवाल समझ में आया सबको? दे आर आस्किंग दैट वी हैव टू मेक वन हाउस, वी हैव टू बिल्ड वन हाउस. सो टू बिल्ड वन हाउस इफ 3% आर डूइंग द जॉब देन इट विल टेक 8 days. अगर 3 बंदे लोग काम कर रहे हैं घर बनाने में, राइट, तो 8 दिन लग रहा है उनको. लिखा 3 बंदे लोग 8 दिन. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, मुझे घर जल्दी बनाना है, मुझे घर जल्दी बनाना है, 6 दिन में बनाना है. तो वो लोग पूछ रहे कितने लोग लगेंगे. ऑब्वियसली ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे? लार्जर और कम, मोर और लेस? यस, मोर विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज ऑब्वियसली ना गाइस, जब 3 बंदे लोग काम करे तो 8 दिन में काम कर रहे हैं, मुझे 6 दिन में काम कर रहे हैं, जल्दी कंप्लीट करना है ना घर को बनाने का, तो मुझे घर के बंदे लोग को बढ़ाना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू, I will write X number of person will be required. I will write
X number of person will be required. So to make the to build a house in 8 days, 3 worker are required, and to build the house in 6 days, X worker are required. Yes or no? So I will write here. See, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो अच्छे से. जब मेरा X था तो कितना डेज में रहता, 6. So what I will do, I will multiply here. Person 1 into days 1 equals to person 2 into days 2. अभी ध्यान दो अच्छे से. पहले पर्सन कितने थे, 3. डेज कितना लगा, 8. तो 3 into 8 हो गया इक्वल्स टू, ध्यान दो अच्छे से, पर्सन कितना है, x into डेज कितना है आपका, 6. You have to find out x. Is it simple or not? You have to find out x. Now do it cross multiply. देखो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो पहले गाइस, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं आगे बढ़ता हूँ. इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो. Okay, done. Now see here, what I have got? I have got 3 into 8 equals to x into 6. ये मिला था मुझे. Now what I will do, I will pick it. देखो 3 into 8. I want here x only ना, मुझे x निकालना है. 6 को यहाँ पर शिफ्ट करो, so 6 is multiply. Shift here, it will become divide. Got it? Now see here carefully. 3 ones are 3 twos are. 3 ones are 3 twos are. 2 ones are 2 fours are. Bingo. So I got what? 4. So 4 equals to x. So x equals to what? 4. So tell me guys, how many days are required? How many members are required to build a house in for 6 days? So I will write number of person equals to 4. अगर हम लोग 4 बंदे लोग से काम कराएंगे, 4 वर्कर से काम कराएंगे, तो 6 दिन में हमारे घर का काम हो जाएगा. टेक द स्क्रीनशॉट. पहला सम दिया आपको 15/25. What is given? 15:25, right? You can see the textbook now. It is given, right? Question number 5. You have to convert the fraction into percentage. You have to convert into percentage. ध्यान दो. 15:25. So I can write 15/25. Yes or no? 15:25 means 15/25. Whenever you will convert into percentage, you have to into 100. तब जाकर ये परसेंटेज बनता है. कभी भी आपको अगर बोला गया एग्जाम में परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ध्यान दो अच्छे से. कभी कभार इससे पहले हम लोग ने क्या किए, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किए, तो वहां पर अपन ने अपॉन में लिखे. यस और नो स्टूडेंट्स? जब भी आपको बोला जाएगा रेशियो को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो मार्क माय वर्ड्स, यू हैव टू मल्टीप्लाई द रेशियो इनटू 100 ओनली वन टाइम. चलो 25 ones are 25 fours are. Yes or no? 25 ones are 25, 25 fours are 100. Now tell me 15 into 4 percentage. 15 into 4 is how much? Yes, you are right. It is 60. So it is 60%. So we have got the answer. We have got 60%. Kindly take the screenshot of this part, guys. Fast. Screenshot निकाल लो इसका भी. और एक सम करता हूं मैं. नेक्स्ट वन इज 47/50. 47:50. क्या करोगे आप लोग? 47/50 मतलब क्या हो जाएगा? यस, 47/50 you will do into 100. 50 ones are 50 twos are. So you will write 47 into 2 is how much? 47 twos are 94. So you got 94%. You got 94%. Kindly take the screenshot of this sum, right? So I'm explaining now. Last sum. Fifth one. What is this? 7/16, guys. 7/16. So anybody can help me out? Those who can answer, kindly raise your hand. Those who can answer, kindly raise your hand. So unmuted. Ayan? Yes, sir. So what you will do in the next step? Sir, in next step we will multiply 100. 7/16 into 100. Okay. Then what you will do? Then, sir, we will
First, we will into 700 into 100. Otherwise, we will divide 16. Yeah. 16 on the 16, and we will divide 100. Okay, so we will make it simple. 2 8s are 16 and 2 5s are and 2 zeros are, right? Yes, sir. Again, you can calculate by 2 4s are, 2 25s are. Okay. Now what will be the answer? 7 into 25 कितना होता है? 7 into 25 करो 35. 7 to the 14 and 3 17. So it is 175 by 4. Yes, sir. So if you will do it, divide this now, you will get 43.75. So this will be a percentage. Percentage point में भी आ सकता है guys, huh? Okay? Yes, sir. You can mute yourself. Yes. Chalo. This is the answer 43.75. Kindly take the screenshot. Kindly take the screenshot. Got it? Okay. So now I will ask some questions. So better that we can move to the next sum also, ना? हाँ. तो नेक्स्ट सम में आते हैं फिलहाल हम लोग रिवीजन जब हम लोग लेंगे ना गाइस पूरा एक बार रिवाइज करूंगा आपसे और सबके आंसर आप ही दोगे मुझे रिवीजन में एक एक बच्चे से हम सवाल करें एक बच्चे से एक से चलो आगे बढ़ते दिस विल बी द लास्ट सम टुडे नाउ टेल मी द रेशियो ऑफ एज ऑफ अभा एंड हर मदर इज 2:5 द रेशियो ऑफ एज ऑफ अभा एंड हर मदर इज 2:5 समझ में आ रहा है at the time of Abha birth her mother age was 27 years find the present age of Abha and mother कभी भी ध्यान रखने का है ध्यान दो अच्छे से जब भी रेशियो दिया जाएगा हम एक सेंटेंस लिखेंगे लेट कॉमन मल्टीपल x इसको याद रखने का है whenever the ratio sum will come you have to write let the common multiple be x so for what is the first age Abha and mother so we will write Abha's age and mother's age Abha's age and mother's age now what is the first 2 and 5 right ratio is 2 and 5 तो हमने क्या डिसाइड किया मल्टीपल क्या रहेगा x रहेगा तो पहले वाले को लिखने का 2x दूसरे वाले को लिखने का 5x इज इट सो सिंपल स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली 2 और 5 नहीं दे सकते ऐसा हमको कोई ना कोई मल्टीपल को लेना पड़ेगा तो मैंने वो मल्टीपल x ले लिया so I can write directly Abha's age is 2x and mother's age will be 5x is it simple now shall we move ahead yes or no चलो आगे बढ़ते now what is given Abha's at the time of Abha's birth mother age was 27 years अब एक बात बताओ मम्मी का एज क्या है बोल रहे 27 इयर्स मतलब अभा जब पैदा भी नहीं हुआ था या हुई थी जो भी है हर है क्या यहाँ पे हर है तो अभा इज अ गर्ल राइट सो व्हेन अभा हैज नॉट टेकन द बर्थ यानी कि जब वो पैदा हुई उस टाइम पे मम्मी का एज क्या था 27 मतलब सिंपल सा चीज है जो भी अभा का एज रहेगा तो मम्मी 27 बड़ा रहेगा उनसे यस और नो मम्मी का एज क्या रहेगा 27 इयर्स ज्यादा रहेगा yes or no now I will calculate first difference I will calculate the difference first मैं एक बात बताओ मम्मी का एज तब क्या था जब अभा पैदा हुई थी याद नहीं एट टाइम ऑफ बर्थ ध्यान दो अच्छे से अभी अच्छा समझो मम्मी का एज क्या रहेगा देखो प्रेजेंट एज क्या है अभी का एज क्या है अभा का एज है 2x मम्मी का एज है 5x तो मम्मी का एग्जैक्ट एज क्या था वो टाइम पे तो हम लोग क्या करेंगे 5x minus 2x यस और नो गाइस 5x में से अगर आप 2x इसका अभा का एज को निकाल दोगे तो जो बचा हुआ मम्मी का एज रहेगा ना लॉजिक क्या बोलता है सिंपल लॉजिक है मम्मी का एज अभी क्या है 5x है अभा का अभी एज क्या 2x है तो मम्मी के एज से अभा का एज को निकाल दो तो बचेगा क्या मम्मी का एज रहेगा तो 5x minus 2x क्या होगा ये होगा आपका 3x लॉजिक क्या होता है लॉजिक समझ में आ रहा है 3x आप मेरे को पता मम्मी का एज क्या था 27 मतलब 3x क्या होगा 3x हो जाएगा आपका 27 सम कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है हमने लॉजिकली 3x निकाले बट एज तो उन लोग ने दिया है ना 27 तो 3x क्या हो जाएगा 27 अब x क्या होगा बताओ x इक्वल टू 27/3 तो x आपको मिलेगा 9 x आपको मिलेगा 9 हमको अभी का एज निकालना है अबा का एज है 2x मम्मी का एज है 5x निकाल लो यहाँ पर
अबा का एज क्या है 2x, तो 2x मीन्स व्हाट 2 into 9, सो अबा का एज है 18 years, अबा का एज है 18 years, मम्मी का एज क्या है मदर, इट इज 5x, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 बिकॉज x इज 9, तो मम्मी का एज है 45 years, मम्मी का एज है 45 years। बात दिमाग में आ रही है, सम समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग सम था। चलो लिख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो।